Dear Modern Stars, today you will write question and answer of chapter 7. Okay, so chapter name is Medieval India, the Chol. Okay, the Cholas. So student, take your history civics book and open chapter 7 and open page number 48 and start writing question and answer of this chapter of part second. Okay, these questions are short answer questions of part second of this chapter. Okay, so student, take your history civics copy and start writing question number 1 of this chapter. Okay, so question is, what information do we get from the various inscriptions of the Chol period? Okay, it means चोल पीरियड के जो भी इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उन इंस्क्रिप्शन से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, हम उससे क्या इंफॉर्मेशन को गेट करते हैं, कौन सी इंफॉर्मेशन को प्राप्त करते हैं. सो स्टूडेंट, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, स्टार्ट राइटिंग. This is about inscriptions. Okay, good. Okay, so start answer of this question. These inscriptions provide information on things. These inscriptions यानी कि जो भी inscriptions मिले हैं. Okay, these inscriptions provide information on things such as the important achievements of the kings of the dynasty, comma, important royal orders on land revenue and grants and the donations made by the kings to the temples and priests. Full stop. It means these inscriptions उन्हें यानी कि ये जो inscriptions, ये जो अभिलेख मिले हैं, ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है चोल डायनेस्टी के जो डायनेस्टी थी उनके राजाओं के बारे में, इम्पोर्टेंट रॉयल जो ऑर्डर्स हुआ करते थे, लैंड रेवेन्यू क्या किस टाइप से टैक्स जो है वसूला जाता था, एंड ग्रांट्स डोनेशंस मेड बाय द किंग्स, जो भी डोनेशंस जो भी ग्रांट्स जो है राजा के थ्रू किया जाता था टेम्पल्स के लिए और प्रीस्ट के लिए. ओके, नेक्स्ट, the copper plate inscriptions record grants of villages. The copper plate inscriptions records grants of villages or cultivable lands made by the Chol kings. Cultivable lands made by the Chol kings. Okay. And next, इट मीन्स आप एक ही पैराग्राफ में लिखेंगे. फर्स्टली आप लिखेंगे दीज इंस्क्रिप्शन से लेकर के पीस तक, नेक्स्ट और उसी पैराग्राफ में द कॉपर प्लेट से लेकर के किंग्स तक. ओके, एंड नेक्स्ट, copper plate inscriptions also provide information about village layout, taxation methods, irrigations. Okay, copper plate inscriptions also provide information about village layout, taxation methods, comma, irrigation, full stop. Okay, so this is answer number first of this question of part second. Okay, next question of this chapter is, note down, question number 2. With reference to the conquest of Raja first and Rajendra first, answer the following questions. ओके, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं. दिस इज अबाउट राज राजा फर्स्ट एंड राजेंद्र फर्स्ट, जो कि चोल किंग्स थे. तो इनके कॉन्केस्ट के बारे में कि इनका राज कहाँ से कहाँ तक था, इन्होंने क्या क्या कॉन्केस्ट किया था, इसके बारे में. ओके, सो फर्स्टली विल राइट विद रेफरेंस टू द कॉन्केस्ट ऑफ राज राजा फर्स्ट एंड राजेंद्र फर्स्ट, comma, answer the following questions. Okay, after writing this line you will write 2a. Who defeated the
Chaluk of Bengi and extended his empire up to Kaling. Okay, it means हु डिफीटेड, किसने हराया था किसको, चालुक और वेंगी, यानी कि वेंगी चालुक के जो किंग थे वेंगी, एंड एक्सटेंडेड हिज एम्पायर अप टू कलिंग, जिनका राज जो है कलिंग में फैला हुआ था और अपना राज फैलाया कलिंग तक। तो वो कौन थे? सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज राज राजा फर्स्ट, RAJARAJA फर्स्ट। ओके, राज राजा फर्स्ट। टू ए का आंसर है राज राजा फर्स्ट। नंबर बी, 2B। ओके, 2B, हु डिफीटेड द किंग ऑफ बंगाल, इट मींस बंगाल के जो किंग थे, राजा थे, उनको किसने हराया था? सो आंसर इज राजेंद्र फर्स्ट, RAJENDRA, राजेंद्र फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, question number C, who invaded the territories of King Srivijaya in Malaysia? Okay, Srivijaya in Malaysia, who invaded the territories of King श्रीविजय इन मलेशिया, मलेशिया में जो किंग थे श्रीविजय, उनकी जो टेरिटरीज उसको इन्वेड किसने किया था? सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आंसर इज राजेंद्र फर्स्ट, RAJENDRA, राजेंद्र फर्स्ट। दिस इज आंसर नंबर C, राजेंद्र फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर D, हु डेवलप्ड अ ह्यूज नवल फ्लीट, इट मीन्स वो कौन से किंग थे, चोल किंग थे, जिन्होंने एक विशाल नवल फ्लीट को डेवलप किया था इन ऑर्डर टू कंट्रोल द फ्लरिशिंग साउथ ईस्ट एशियन ट्रेड। ओके, इट मीन्स वो कौन से चोल किंग थे जिन्होंने साउथ ईस्ट एशियन में व्यापार को फैलाने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए जो है एक विशाल नवल फ्लीट को डेवलप किया था। ओके, सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आंसर इज राज राजा फर्स्ट। ओके, RAJARAJA, राज राजा फर्स्ट is the right answer of D. Next question, question number 3rd. Give the main features of the Chol administration. It means जो चोल एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी शासन था, चोल शासन था, तो उसके फीचर्स के बारे में आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना है। सो स्टूडेंट, ओपन पेज नंबर 47। ओके, पेज नंबर 47 ऑफ दिस चैप्टर। क्वेश्चन इज गिव द मेन फीचर्स ऑफ चोल एडमिनिस्ट्रेशन। चोल एडमिनिस्ट्रेशन के मेन फीचर्स के बारे में लिखना है कि उस समय चोल शासन कैसा होता था, किस तरह से वर्क होता था। सो ओपन पेज नंबर 47, चोल एडमिनिस्ट्रेशन, नोट डाउन आंसर। ओके, स्टार्टिंग। The Cholas proved that their system of administration was highly organized and efficient. The Cholas proved that their system of administration was highly organized and efficient. Full stop. The emperor was the epicenter. The emperor was the epicenter of the whole machinery of the state. His verbal orders, his verbal orders were drafted by the royal private secretary. Okay, his verbal orders were drafted by the royal private secretary. Full stop. Next, in this question, okay, the Chol army consisted of elephants. The Chol army consisted of elephants, comma, cavalry and infantry, cavalry in
infantry, mun rukai mahasenai, or the great army with limbs. Full stop. Next in this question, इसी क्वेश्चन के आंसर में आप लिखेंगे the naval prowess of the Cholas was also commendable. Full stop. Not only were the Coromandel, not only were the Coromandel and Malabar coast controlled by them. इट मीन्स उनकी जो नवल जो पावर था यानी कि वो सिर्फ केवल कोरोमंडल तक ही नहीं मालाबार तक भी उनके अंडर कंट्रोल में था, वहां तक फैला हुआ था. कॉमा ही ऑल्सो हैड हिज इन्फ्लुएंस अराउंड द बे ऑफ बंगाल, यानी कि उनका प्रभुत्व जो है, उनका प्रभाव बे ऑफ बंगाल तक भी उनके इन्फ्लुएंस में था, प्रभाव में था. फुल स्टॉप. The Blage administration was autonomous. The Blage administration was autonomous and self-sufficient. Full stop. There were three types of regularly functioning assemblies, namely A. The Ur, B. The Sabha or Mahasabha, and C. The Nagaram. Full stop. Next line in this question. The central government, comma, it was responsible for external defense, comma, maintenance of internal peace and promotion of general prosperity as well as the cultural progress of the empire. Full stop. The Blage assemblies were left largely to themselves. Full stop. The central government interfered only in cases of conflict or other exceptional situations. Full stop. Okay, this is answer number 3rd. Next question, question number 4. Note down question number 4. Yes. Study the picture. Okay, firstly watch this picture. इस picture को आप ध्यान से देखिए. Next, स्टडी द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. पिक्चर को अच्छे से स्टडी करना है, उसके बाद जो भी गिवन क्वेश्चंस हैं उनका आंसर देना है. सो क्वेश्चन नंबर 1, नेम द टेम्पल. 4A, नेम द टेम्पल. ओके, टेम्पल नेम इज वृद्धेश्वरा. ओके, BRIDHADESHWARA. वृद्धेश्वरा. टेम्पल नेम क्या है? वृद्धेश्वरा. ओके, और इसी टेम्पल को राजेश्वरा नाम से भी जानते हैं. ओके, वृद्धेश्वरा टेम्पल को राजेश्वरा नाम से भी जानते हैं. ओके, क्योंकि ये टेम्पल जो है किंग जो राजा फर्स्ट से उन्होंने बनवाया था लॉर्ड शिवा के सम्मान में. ओके, सो इस टेम्पल का नेम है वृद्धेश्वरा. BRIDHADESHWARA, वृद्धेश्वरा. और इसी को राजेश्वरा भी कहते हैं. RAJARAJE ओके, GESHWARA.
ओके, राज राजेश्वरा भी इसी को कहते हैं, बृहदेश्वरा टेम्पल भी कहते हैं। ओके, बृहदेश्वरा और राज राजेश्वरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ए ऑल्सो, 2 टाइम ए दिया गया है। ओके, नेम द टेम्पल, सेकेंड में है नेम द प्लेस एंड द स्टेट वेयर दिस टेम्पल इज लोकेटेड, यानी कि आपको उस प्लेस का नाम भी बताना है और स्टेट का नाम भी बताना है जहां पर ये टेम्पल बना हुआ है। सो प्लेस नेम इज तंजावुर। ओके, THANJABUR, और स्टेट कौन सा है? तंजावुर इन तमिलनाडु, TAMILNADU, तमिलनाडु। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी, when and by whom was this temple built, यानी कि कब और किसके द्वारा इस मंदिर को बनवाया गया था। ओके, किसके द्वारा इस मंदिर, कब और किसके द्वारा इस मंदिर को बनवाया गया था। ओके, सो स्टूडेंट्स, when मीन्स कब और किसके द्वारा बनवाया गया। ओके, राज राजा फर्स्ट in around 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 1009 CE। ओके, राज राजा फर्स्ट, इसमें पूछा गया है कब और किसने, तो राज राजा फर्स्ट इन अराउंड 1009 CE में इसको बनवाया गया था, उसके आसपास जो है इसको बनवाया गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी, टू विच डेटी वॉज दिस टेम्पल डेडिकेटेड, यानी कि ये ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सी में पूछा गया है कि ये जो टेम्पल है, जो बृहदेश्वरा टेम्पल है जो कि तंजावुर तमिलनाडु में है, इसको राज राजेश्वर नाम से जाना जाता है। इनको राज भी कहते हैं। ओके, इनको आप जो है राज भी कह सकते हैं, जो राजा भी कह सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, वो कौन से देवता है जिनको डेडिकेटेड था ये मंदिर। आंसर इज लॉर्ड शिवा, LORDSHIVA, लॉर्ड शिवा, वो लॉर्ड शिवा है जिनको ये टेम्पल जो है मंदिर डेडिकेटेड था। एंड आंसर नंबर डी, मेंशन 2 इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस टेम्पल, यानी कि आपको आंसर नंबर डी में ये जो टेम्पल है इसके मेन फीचर्स के बारे में लिखना है। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो ओपन पेज नंबर 46। ओके, 46 पेज नंबर पर इसके बारे में दिया गया है। ओके स्टूडेंट्स, सो ओनली 2 फीचर्स आपको लिखना है इसके बारे में। इट्स विमाना, इट मीन्स इट्स विमान above the गर्भगृह, its विमान above the गर्भगृह, comma in which the deity is enshrined, comma is 66 meters high, 66 meters high। ये हो गया है फर्स्ट फीचर। ओके, सेकंड फीचर, the inner walls of the temple have extensive paintings and sculpture, the inner walls of the temple have extensive paintings and sculpture, full stop।
तो आपको इस क्वेश्चन के आंसर में कोई दो फीचर्स लिखने थे। इट मीन्स उसको टू फीचर्स के बारे में बताना था कि मंदिर के बारे में। सो फर्स्ट इज इट्स विमान above द गर्भगृह कॉमा इन विच डेटी इज इंस्ट्रिंड, जहाँ पर देवता की जो है मूर्ति इंस्ट्रिंड इज 66 मीटर्स हाई, फुल स्टॉप। सेकेंड फीचर्स है इनर वॉल्स, जो मंदिर की जो इनर वॉल्स है, द इनर वॉल्स ऑफ द टेम्पल एवब एक्सटेंसिव पेंटिंग्स और स्कल्पचर, उसमें पेंटिंग और स्कल्पचर जो है बने हुए हैं। तो ये दो फीचर्स हो गए इस टेम्पल के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, सो योर ऑल क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर have been completed. Okay, next day you will write answer of chapter 8. Okay students, so it's enough for today and take care yourself.